our problem statement was that the Constitution of India is basically divided into a lot of articles. There are huge articles that are present in the system Yeah. itself. Particularly for us, we were given just the part of Part 5 and Part 6, which is the union, that is the central government, and the states. And what Hmm. specifically these means are that all of these part 5 and part 6 were most of the articles, basic articles that were the roles of a president, vice president, or the governor, and we had to actually gamify it, which means we have to put it in a format to a Hmm. people, to a particular amount of people, that will help them understand it in a simpler way. And that is exactly what gamification means. Basically, what Hmm. we can do, what we can make it, similar to the psychology of the people itself, so that it feels like, okay, this is something I'm used to, and it is good for Hmm. us. So I guess gamification of Constitution of India for us specifically was actually create some amount of games or create some amount of features that will be interactive to the user itself, and at the same Hmm. time they would be able to get information out of those systems. So, hey everyone, welcome back to the new episode. So, in this podcast, we will be discussing about SIS 2024. How was the experience of the team which were selected and gone to the different colleges at the different locations. So, brother, can you give your introduction? Sure, Gagan. Hi, I'm Yash. I'm from Team White Benders. Our team was selected for the problem statement of gamifying the Constitution of India. We were allotted the nodal center of VTU Belgavi, and it was a nice experience, to be honest. Actually, I represent Universal College of Engineering, and it was quite fun. So let's begin, Gagan. Yeah, okay. So, can you briefly introduce your problem statement? Means, why did you choose that, and did you choose that field? Okay. So initially, sometimes we actually plan about a lot of things and something else happens. What happened was initially that we had this options of selecting problem statements, right? So initially, we actually planned for something else. The planning was actually to prepare a web app, which was designed to give government a simple, profile where students will interact with each other. It was kind of Instagram for students of university itself. That was some other problem statement actually, and we worked a lot on that. There was a lot of refining PPT and everything else. And this thing Hmm. of gamification of Constitution of India was kind of Plan B, and Hmm. not much efforts, but we put the similar amount of structurization. Like while we Hmm. prepare a PPT itself, the same amount of structure was whatever was in the first problem statement, the same gamification itself. Then what actually was keep our team of 5 or 6 people. We have never been into something like game development itself, but some person like one person Lee itself was kind of known to game development कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, and Hmm. we were like, all right, we were quite much ready, but not like this much ready that okay, this will be selected as such. But finally it happened. So let's understand what exactly gamification of Constitution of India is all about. Before we understand gamification of Constitution of India, let's take a Hmm. step back and understand what exactly gamification means in the first place, and what Hmm. is a game in the first place. Tell me, Hmm. Gagan, why would you choose COC over Candy Crush? Actually, I would choose COC because I like that game Which, from sixth or seventh uh standard. that's exactly what, because it is visually amazing, right? The visuals are Hmm. amazing, the sound is amazing, there is character, there is some story to these characters, right? Probably what is exactly what we thought. Games means for entertainment. Games are meant for entertainment. Games give Yeah. some, feeling of, competition that has been inherited in us as human race. जो भी Hmm. games का होता है कि there is always a level, there is always a leaderboard that people always want to climb on, and this entertainment factor is what make games. But Hmm. gamification is something different. Gamification is on top of a system. Hmm. So what happens exactly in our problem statement was that the Constitution of India is basically divided into a lot of articles. There are huge Hmm. articles that are present in the system Yeah. itself. Particularly for us, we were given just the part of Part 5 and Part 6, which is the union, that is the central government, and the states. And what Hmm. specifically these means are that all of these part 5 and part 6 were most of the articles, basic articles that were the roles of a president, vice president, or the governor, and we had to actually gamify it, which means we have to put it in a format to a Hmm. people, to a particular amount of people, that will help them understand it in a simpler way. And that is exactly what gamification means. Basically, what Hmm. we can do, what we can make it, similar to the psychology of the people itself, so that it feels like okay, this is something I'm used to,
and it is good for Hmm. us. So I guess gamification of Constitution of India for us specifically was actually create some amount of games or create some amount of features that will be interactive to the user itself, and at the same Hmm. time they would be able to get information out of those systems that we have created itself. That was basically Constitution of India for us, gamification of it. Okay. So मीन्स ये तो गेमिफिकेशन वाला हो गया, तो मीन्स आपका अप्रोच क्या था, मीन्स हाउ डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मीन्स Hmm. which technologies you used? Okay, let's start with the. I think we can look at the screen itself. So let's say कि SH का part, SH 2024. Let's divide the gamification का part क्या था and how we can do it. Gamification be divided into three part approach right now. पहली बात तो कि गेम्स क्या होगा ना, गेम्स क्या तरीके का होगा. दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा. ठीक है. Because as you can see, Constitution is a very serious body, and game is a very free flowing body. बहुत chill out entertainment type. ठीक है. And to create a combination of it. I hope you can understand of it. ठीक है. So let's understand. तो हमने क्या किया बेसिकली, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया. कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया. अब ये पार्ट्स थे क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. पहली बात तो हमने थ्री पार्ट जो थे वो था एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव. Yeah, these ठीक are है. the pillars. ये थ्री पिलर्स जो भी थे हम लोगों ने उन थ्री पिलर्स को डिवाइड कर दिया पार्ट्स के ऊपर. ठीक है. अब जो पार्ट से बात था कि हम लोग को पार्ट 5 एंड 6 दिया था, उसी आर्टिकल्स को हमने इन तीनों में डिवाइड कर दिया. एंड वी हैड दिस क्लस्टर्स, कुछ ना कुछ तो क्लस्टर्स थे. क्लस्टर्स रह गए ऑफ 7 आर्टिकल 6 आर्टिकल्स, यू कैन से क्लस्टर्स थे. 5 एंड 6 आर्टिकल्स थे. एंड बेसिकली ये जो भी आर्टिकल्स थे हम लोगों ने समराइज करके रखे थे. तो ऐसा नहीं था कि कुछ बड़ा बड़ा एकदम लाइंस रहेगा. दिस वुड ओनली हैव लाइक एक दो लाइन का कुछ, एक दो लाइंस, या फिर एट मोस्ट 3 4 लाइंस ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है. दीस वर द आर्टिकल्स दैट वी हैव क्लस्टर्ड राइट नाउ. क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3. यू कैन से देयर वर क्लस्टर्स ऑफ 7 आर्टिकल्स का क्लस्टर रहेगा, 11 आर्टिकल्स का क्लस्टर रहेगा, राइट. अब ये हो गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को तो क्लस्टर बना के रख दिया है. इट इज नाउ गुड, इट लुक्स वेरी फाइन. अब हम लोग को समझ आए क्लस्टर्स है. ठीक है. नाउ देन कम्स अ डिफरेंट पार्ट विच इज द गेम इटसेल्फ. भाई गेम्स क्यों ऑन द फर्स्ट प्लेस. गगन अगर हम लोग रिकॉल करेंगे, यू सेड दैट यू लाइक सीओसी. अब पहली बात तो हम लोग ने वही रिकॉल किया, हम लोग का यूजर डेटा का ऑडियंस ही वही था कि हम गेम्स कौन से चूज करें. अगर मैं कैंडी क्रश चूज करता या फिर सम सिंपल सिंपल गेम जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स रहेंगे एंड ऑल, तो ये सब जो थे वेरी नॉर्मल वीडियो का नीच गेम थे. और हमारा पार्ट ये था कि बंदा खेलेगा लेकिन बंदा याद नहीं रहेगा. विड यू रिमेम्बर एक्चुअली कि तूने 100 लेवल पे क्या किया था कैंडी क्रश में? नहीं, नहीं, अभी तो नहीं. एग्जैक्टली पॉइंट इज क्यों. बट यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इफ यू प्ले RDR2 जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन रहेगा या फिर घोस्ट ऑफ सुशीमा रहेगा या फिर GTA, अपना GTA वाई सिटी, यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि मैंने CJ के साथ एक लेवल किया था, बराबर. Yeah, fact. दैट्स अ फैक्ट. अब बात ये कि इनका टाइप का जो गेम है, दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम. दिस डिफरेंट इज RPG गेम्स. RPG मतलब रोल प्लेइंग गेम्स जिसके अंदर होते हैं कैरेक्टर्स, जिसके अंदर होते हैं एक स्टोरी लाइन. ठीक है. जिसके अंदर होता है विजुअल, जिसके अंदर होता है साउंड्स. इसकी वजह से बंदा ऐसा लगता है कि वेब सीरीज चल रहा है बंदे का, लेकिन वो बंदा खुद वेब सीरीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. ऐसा ही होता है ना, आई बिलीव. Yeah. जब दिस इज द बेसिक स्टोरी लाइन. तो हमने सोचा सिंस अगर हम लोग एक सिंपल गेम जैसे क्रॉसवर्ड पजल या फिर X&0 या फिर क्विज होता, दैट इज गोइंग टू बी देयर. हम लोगों ने ऐसा नहीं कि इन लोग को ऐसे ही छोड़ दिया, क्विज इज गोइंग टू बी देयर. हम लोग ने एक्चुअली क्रिएट करके रखा था. एक क्विज रहेगा या फिर एक कार्ड बेस्ड गेम रहेगा. इनको हमने क्रिएट करके रखा था. और इनके क्लस्टर्स था ना, जैसे कि क्विज रहेगा, क्विज का जो KBC देखा आप लोगों ने, 4 ऑप्शंस थे, हाँ. क्वेश्चंस होते हैं. तो वैसे ही हम लोगों ने क्विज बना के रखा था. उसी जो आर्टिकल्स का ही था, उसी आर्टिकल्स का क्विज बना के हम लोगों ने रख दिया था. अब पॉइंट ये था कि इसको मैं खेलूंगा कि नहीं, दैट वाज द बिग थिंग. तो हम लोग ने डिसाइड किया कि बंदा उसको खेलेगा भी और बंदा उसके पास एक कारण भी रहेगा गेम खेलने का. एंड दैट इज व्हाई वी वांटेड टू एम्फेसिस दिस क्विज इन एन RPG इटसेल्फ. इसका फ्यूचर रिजल्ट क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस. कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या किए राइट नाउ. सो वी टुक दिस RPG बेस्ड अप्रोच और हम लोग ने इसी मिनी मैप के, या फिर इसको जो हम लोग ने क्विज बोलते हैं, दिस क्विज वर कॉल्ड मिनी गेम्स. इस मिनी गेम्स के अराउंड हम लोग ने एक बड़ा सा मैप बना. ठीक है. बड़ा सा मैप कैन बी अ थीम बेस्ड मैप. जैसे कि कभी कभी किसी में गार्डन था, कभी कभी किसी में वाटर बेस्ड मैप था, किसी किसी में केव्स था. ठीक है.
अराउंड अराउंड 11 मैप्स थे, ठीक है। हम्म एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू व्हाई, ठीक है। 11 मैप्स क्यों थे? और ये जो हम्म मिनी गेम्स थे, क्विज थे, ये भी उस आर्टिकल्स के ऊपर ही बेस्ड थे। अब बात है कि एक क्विज नहीं था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्विज थे। तो हम लोगों ने एक मैप बनाया, बोला कि यार इस ये मैप दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर मैप है, एक एक सिमिलर मैप रखता हूँ कि ऐसे 4 रीजन रहेंगे। हम्म हमारा जंगल था, एक हम्म एक, एक तरह का बताता हूँ कि हम लोगों ने जंगल बना के रखा था। बंदा इधर से स्पॉन होगा, ठीक है, इट विल गो 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 हम्म हियर। अब क्या है हम्म कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्विज डायरेक्टली, इस बंदे हम्म को पहले रैंडम एनपीसी का इंटरेक्शन होगा। वो एनपीसी एक इसको स्टोरी बताएगा कि भाई यहाँ जंगल में ऐसा होता है, जंगल में वैसा होता है, जंगल का ओके थीम ओके। ऐसा है। हाँ हाँ। यप, अब बात ये था, तो उसी क्विज को हम लोग ने इस जंगल के अंदर डाल दिया। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सीधे क्विज खेलने जाऊं और शायद से मुझे डायरेक्ट वो डोपामिन रश मिले, हम लोगों ने उसको थोड़ा हम्म सा फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया, ताकि बंदे को लगे कि जो क्विज है ये मेरा रिवॉर्ड है, इंस्टेड ऑफ कि हाँ मैं सीधे हम्म क्विज खेल रहा हूँ। ठीक है, इसके हम्म बाद का जो है वो रिवॉर्ड नहीं रहेगा, क्विज इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। एंड ऐसा भी ओके। था, जो क्विज था ना, जो भी मैप रहेगा, जो भी मैप का थीम रहेगा, उसका हम्म स्टोरी लाइन भी ऐसा हम लोगों ने क्रिएट किया था कि जो आर्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स है, तो उस आर्टिकल्स के अराउंड हम लोग स्टोरी लाइन बना रहे थे। कि लेट्स से अभी अगर ये आर्टिकल रहेगा गवर्नर के बारे में, तो पूरे गेम में नहीं, क्या गवर्नर के आसपास कोई एक स्टोरी बनता था। एंड ऐसा भी हम्म था कि अगर 7 आर्टिकल इधर है ना, तो आर्टिकल का एक टेस्ट होता था यहाँ पे, टेस्टिंग सेंटर होता हम्म था, कुछ भी अलग अलग। तो बंदा घूमता भी था, घूमता था, बैकग्राउंड में विजुअल्स भी चलते थे, मस्त, ही इज गोइंग टू एंजॉय, राइट। दिस इज हम्म वन मैप। वैसे तो वंस इट इज डन कि बंदे ने एक आर्टिकल पढ़ा, बेसिक स्टोरी लाइन ये था कि बंदा आर्टिकल पढ़ेगा, बंदा टेस्ट देगा, हम्म एक स्टोरी लाइन बैकग्राउंड में चलते रहेगा, एंड वो स्टोरी से करते हम्म करते कंटिन्यू करते नहीं, वो एक नेक्स्ट मैप में भी जाएगा। उस नेक्स्ट मैप में भी कुछ ना कुछ अलग अलग चलेगा, ठीक है, अलग अलग स्टोरी लाइन रहेंगे, अलग अलग शेप के मैप्स रहेंगे। एंड दैट्स हाउ हम्म वी थॉट कि दिस वुड बी द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन, एंड दैट इज आवर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग सेमीफाइनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। हाउ यू फाइंड इट वैसे, गगन? क्या भाई, क्रेजी भाई, सैल्यूट टू यू भाई, क्रेजी। ऐसा तो कोई सोच सकता है? मैं मस्त था वैसे देख रहा हूँ कि कोई मैप्स एक्चुअली इट बना वाज, रहा है। that was actually crazy. If I could have shown the maps, actually, अगर मैं screen share कर सकता था, we would have done it. You can also check my LinkedIn, by the way, guys. वहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा about every maps that we have done. बहुत crazy game था हमारे लिए. You can ask the next questions वैसे. ओके मीन्स, ये तो मेरे को क्रेजी क्यों लगा, टू एंगेज एनी ऑफ अ यूजर इन दैट मैप, इट्स लाइक वेरी क्रेजी। को वो याद रखेगा जो मैं यहाँ पे आया Right. था, यहाँ पे मैंने ये Uh, किया, यहाँ पे मैं ये किया। मैं वही. क्रेजी भाई, ये तो मैंने आज तक ऐसा आइडिया ही नहीं देखा मैंने आज And the base idea itself कि बंदा याद रखे उसको। गेम सब तक। खेलेंगे, वो याद कोई नहीं रहेगा, क्या फायदा करेगा, राइट? सो ऐसा भी था। एंड वही और कुछ क्वेश्चंस गगन, एनीथिंग एनीथिंग मोर ऑन या दैट? हाँ, तो फिर मेरे को थोड़ा फ्लो चार्ट समझाएंगे कि मैं ये कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने किया, वो बताइए जरा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बराबर करेंगे, ठीक है। पहले अपन बनाएंगे मैप, मतलब अभी अभी हम लोग को फिर मेरे दिमाग में तो ऐसा बैठ गया था, फर्स्ट विल क्रिएट अ मैप, ठीक है। पहले मैप, क्योंकि मैं मैप डिजाइनर था, मेरा पार्ट वही था, तो मैं पहले मैप बनाऊंगा। कोई तो अलग अलग हम्म शेप का मैप्स रहेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारी टीम आएगी, उसके अंदर हम लोग मिनी गेम्स डालने का डिसाइड करेंगे कि मिनी गेम्स कहाँ पे रहेगा, क्या पे पॉइंट पॉइंट्स होगा, ठीक है। कि समझ ऐसा मैप्स है जहाँ पे अलग अलग तरह का रहेगा। तो यहाँ पे नहीं, क्या कुछ ना कुछ तो अलग एक चीज रहेगा पूरे मैप के अंदर, जिसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कि लेट्स से हम्म ये बंदा कोई तो गांव रह सकता है, हनीकॉम्ब विलेज ऐसा कुछ रह सकता है, तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ तो एक अलग स्तंभ रह सकता है। या बेसिकली कोई तो हम्म एक विलेज का एक घर रह सकता है। उसको हम लोग मार्क हम्म करके रखते थे कि हाँ यहाँ पे टेस्ट हम्म होगा, यहाँ पे आर्टिकल्स होंगे करके। ऑलराइट। हम्म तो फर्स्ट थिंग वाज दैट क्रिएट अ मैप एंड क्रिएट द स्पॉन पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ पे वो गेम्स हो सकता है। अगर ये मिनी गेम्स यहाँ पे हो गए, इस मैप पे हो गया, दैट्स डन, ठीक है। अब इन्होंने स्पैम कर दिया था, यहाँ पे डाल के रख दिया। अब बनाएंगे हम्म हम स्टोरी ओके। कि हाँ भाई, अब भी अब वहाँ पे बंदा जाएगा कैसे, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ से क्यों जाएगा, पहली बात तो। और वैसे भी हम हम्म लोगों ने सोच के रखा था, अगर यहाँ पे ही स्पॉन पॉइंट है और यहीं पे टेस्ट हम्म दे रहा है, तो बंदा इधर से इधर क्यों जाएगा, पहली बात तो उसके लिए भी बीच में स्टोरी था सबके लिए। दैट वॉज हम्म डन। अब बंदा ये सब हो चुका है, स्टोरी क्रिएट हो चुका है, मिनी गेम्स हैं। अब पार्ट हो गया डेटाबेस का पार्ट, कि डेटाबेस से हम कैसे कॉल करेंगे। हमारे लिए पहले था मोंगो डीबी, हम लोगों ने यूज किया एज अ डेटाबेस। हम्म एंड हम लोग फ्लास्क एपीआई से कॉल कर रहे थे, वेरी सिंपल, हम लोगों ने इतना कुछ कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं अलग से। तो मोंगो डीबी का डेटाबेस से हम लोग क्विज को उठाते थे, ठीक है। वो फ्लास्क एपीआई से कॉल होता था यहाँ पे, सिंस यहाँ पे कुछ बटन थे ना, टेस्टिंग साइड से कुछ बटन रहेंगे। फ्लास्क एपीआई को हम्म कॉल करेंगे, मोंगो डीबी से जाएगा, मिनी गेम्स आएंगे, एंड यू विल बी एबल टू प्ले द मिनी गेम्स इटसेल्फ। बहुत सिंपल फ्लो था, इसको अराउंड अराउंड 11 टाइम्स रिपीट कर दो, सिंस वी हैड 11 मैप्स। ओह ओके ओके।
एंड बहुत बड़ा गेम था। ये तो क्रेजी आइडिया है। एंड ये तो इम्प्लीमेंट करने से मीन्स आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है क्या? मीन्स व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग दिस? इट इज एग्जैक्टली भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज ये थे। पहली बात तो कि लेट्स से हाँ। डेटाबेस का भी था, मोंगोडीबी जो था ना, सिंस फ्री हम्म। वर्जन रहेगा तो 0.1 सीपीयू अपने को मिलता है फ्री में, ठीक है। हम्म। तो वो ऐसा था कि अगर मैं यहाँ पे कोई, अगर लेट्स से कि एक बटन रहता यहाँ पे, नहीं क्या आसपास एक ट्रिगर पॉइंट था कि इस एरिया के अंदर आ गया ना हम्म। बंदा, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट चालू हो जाएगा। तो उस टेस्ट ओके। चालू होने के बाद ने क्या, इसको कॉल करने में, डेटाबेस कॉल करने में एटलीस्ट 1-2 मिनट लगता था। तो बोला भाई हम्म। इतने में तो गेम खत्म ही हो जाएगा, 1-2 मिनट इज अ वेरी मच लॉन्ग टाइम। तो उस टाइम को हम्म। रिड्यूस करने में थोड़ा टाइम गया। फिर उसके बाद जो कभी कभी ऐसा होता था कि मिनी मैप यहाँ पे ट्रिगर तो हो जाएगा, गेम्स तो ट्रिगर हो जाएगा, हम्म। लेकिन क्विज किसी और चीज के बारे में ही है, तो वो भी फिक्स करना था हम लोग को। फिर हम्म। कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा था कि हम लोगों ने ऐसा भी टेस्टिंग किया, चल ठीक है अगर मैं स्टोरी लाइन फॉलो ही नहीं करता, मैं मैप के बाहर चले जाता हूँ तो क्या करोगे। तो वो मैप का हम्म। फिजिक्स ऐड करना था अलग से कि हाँ भाई बंदा इधर से बाहर नहीं जाए और इसी स्टोरी लाइन के अंदर पकड़ के रखे, एवरीथिंग एंड नॉट ओनली दैट कि फ्लास्क एपीआई, कि हाँ एपीआई अच्छे से चले हम लोग का। एंड जो हम लोग का टाइम था 1 से 2 मिनट से लेके हम लोगों ने उसको एटलीस्ट 10 सेकंड में कर दिया, एंड आते आते फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का 2 सेकंड तक सब कुछ एकदम सॉर्टेड था। इट वॉज वेरी गुड। दिस वॉज वेरी मच एक्चुअली मैम, दिट वॉज लाइक हम लोग के लिए, फॉर नॉन गेम डेवलपर्स दिस वॉज द बिगेस्ट प्रोडक्ट वी कुड क्रिएट। So that is the best thing right now I can say. I hope you understand. या मीन्स भाई क्रेजी है भाई। क्या ही बोलूं मैं। मेरे को एक बताना कि एट द एंड जब आप कॉलेज में गए थे, जब आप ऐसा सिलेक्ट हुआ, आप कॉलेज गए, but देखिए क्या पूरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ था? नॉट एट ऑल। पहली बात तो ये आइडिया तभी आया ही नहीं, बिकॉज पॉइंट इज जिस टाइम पे हम सिलेक्ट हो चुके थे उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और मी पर्सनली, मेरा या कैट का एग्जाम चालू था, नवंबर का, क्रिएटिव 2024 का एग्जाम्स था। एंड उसी टाइम पे हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम भी है अभी राइट नाउ, हम्म। एज यू कैन सी। नवंबर का पूरा महीना सेमेस्टर्स का एग्जाम भी था टिल December 14, क्योंकि इफ यू रिमेंबर December 14 उसके पहले ही ऐसा खत्म हुआ है 12 दिसंबर को। तो हाँ बेलगाम बरोबर। में, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, हम लोग उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो द पॉइंट वाज, हम्म। ये गेम को बनाने में हम लोग को लगे 15 से 20 दिन। और उसमें हम्म। से हम लोगों ने हर एक पॉइंट नहीं किया कि सिंस हमारे जूनियर्स भी थे, हमारा टीम ऐसा था कि हमारे इधर 3 जूनियर्स थे और 3 सीनियर्स थे। तो बनाते हम्म। बनाते हम लोगों ने ऐसा किया कि हाँ हाँ भाई आज के दिन फ्रंट एंड काम करेगा, आज के दिन बैक एंड काम करेगा। इट वॉज हाँ वेरी हाँ। हेक्टिक वो पॉइंट ही, बट या इट वॉज पॉसिबल तब तक जब तक गेम बना। ऑन डे तक भी नहीं बनाया सैश का, ऑन डे भी गेम नहीं बना था अनटिल एंड अनलेस हम लोग का सेकंड 36 आवर्स में से 24 आवर्स जब तक कंप्लीट हुए तब गेम बना हम लोग का आके। ओके ओके। मैम आपको कंट्रीब्यूशन क्या था इस प्रोजेक्ट में? आपने क्या क्या किया इस प्रोजेक्ट के लिए? ओके ओके, सो बिफोर कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ बैकग्राउंड, मेरे हिसाब से तो ठीक है, मैं पाइथन डेवलपर हूँ। बट हम्म। सिंस मैं कैट प्रिपरेशन में था तो मैं थोड़ा सा कैट पूरा पाइथन का नॉलेज ही मेरा भूल गया था। सिंस पाइथन, अगर तुम, इट्स लाइक अ स्किल राइट, अगर तुम लोग कुछ सीखते हो जैसे खाना बनाना सीखते हो, अगर तुम लोगों ने बहुत ही कम सीखा रहा है खाना बनाना, यू विल फिगर आउट नहीं कि अगर अगर मैंने अभी दाल बनाना सीख गया हो तो अगले 2 महीने बाद हम्म। फिर से पूछोगे दाल कैसे बनाई तुम लोगों ने, तो मैं भूल जाऊंगा करेक्टली। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी विद पाइथन, कि मुझे पाइथन आता था लेकिन बाद में मैं भूल चुका था। बट वन थिंग दैट इज यू कैन सी अबाउट मी इज कि मैं क्रिएटिव पार्ट में बहुत ज्यादा हूँ, सिंस मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। एंड वीडियो हम्म। एडिटिंग हैज बीन अ वेरी नीश पार्ट फॉर मी, वीडियो एडिटिंग, स्पीकिंग या स्टोरी टेलिंग जो भी होता है। ओके। तो हम्म। ये पार्ट जो है स्टोरी टेलिंग का, विजुअल्स का, कैरेक्टर्स का, दिस हैज बीन इनहेरिटेड इनटू मी। इसके लिए मैं, अगर तुम लोग मुझे 10 साल बाद भी पूछोगे आई विल से द सेम थिंग। सो माई पार्ट हम्म। इन द होल एस आई एच वॉज टू हम्म। एक्चुअली, जो भी मैप्स मैंने बोला, वो हम्म। पूरा मैप्स क्रिएट करना है, मैप्स के हम्म। ऊपर स्टोरी लाइन क्रिएट करना है, उसका हम्म। विजुअल डिसाइड करना है कि उस विजुअल्स में कौन किधर कैसा मैप्स जाएगा। ऐसा बोले ओके। काम नहीं कर रहा, विजुअल्स क्या रहेगा, उसका साउंड्स क्या रहेगा बैकग्राउंड में, बंदा कौन से टाइप के गेम्स खेलेगा। दैट वाज माय पॉइंट, दैट वाज माय पार्ट। ऊपर से मेरे टीम का पार्ट ये था कि ये गेम वो लोग डिजाइन करें, एंड हम्म। उसका जो क्लस्टरिंग का पार्ट रहेगा वो भी वो लोग डिजाइन हम्म। करें, एंड ओवरऑल डेटाबेस संभालना भी था। ये सब मेरी टीम का पार्ट था मैन, अमेजिंग टीम टू बी ऑनेस्ट। दैट्स द ओके। पॉइंट, डेटाबेस डिजाइन करना, एवरीथिंग एंड स्क्रिप्टिंग का पार्ट मोस्टली। अब ये सब तो एक हम्म। साथ डाल दिया मैंने भाई, बना के तो रख दिया, बट स्टोरी लाइन को मैप के साथ रखना, फिर गेम्स को उसके साथ रखना, ये सब मेरी टीम का काम था। स्क्रिप्टिंग बेसिकली, कनेक्शंस, इंटीग्रेशंस। माय पार्ट वाज दिस, मैप बनाओ, स्टोरी लाइन बनाओ, विजुअल्स डालो, साउंड अच्छे से बनाओ, एंड गेम कौन से रहेंगे वो बनाओ। दैट्स द पॉइंट। ओके। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भैया आपको मीन्स ऐसे
जो भी इंटरव्यूअर्स रहते हैं, जजेस रहते हैं, उन्होंने आपसे पूछा होगा कि व्हाट इज द एग्जिस्टिंग फीचर्स एंड जो ट्रेडिशनल फीचर्स रहे होंगे, जैसे आपका गेम डेवलपमेंट है, तो गेम डेवलपमेंट हम्म। में तो ये एग्जिस्ट करता होगा, एग्जिस्टिंग फीचर्स, एंड नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ न्यू फीचर्स, वो वैसे क्या, बताइए जरा। ओके ओके, सो न्यू फीचर्स के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट था कॉन्स्टिट्यूशन का, गेमिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गेम्स है ही नहीं, और जो गेम्स एग्जिस्ट करते हैं वो यही था कि आई सेड यू नो, वो एकदम कैंडी क्रश टाइप की क्रॉसवर्ड पजल रहेगा वगैरह वगैरह, एज आई सेड पूरा। तो जो भी था, बन गेम बहुत बोरिंग था बेसिकली, जो भी गेम्स थे बहुत बोरिंग थे। सो जूरिस को एक पार्टी हम लोग की भी गलती थी बेसिकली, कि हम जूरिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो आरपीजी टाइप का गेम होता है ना, दिस कैटेगरी, वो क्या होता है। दे वर लुकिंग लाइक कि यार तुम लोग तो बस एंटरटेनमेंट के लिए गेम बना रहे हो, तो एजुकेशन मिल ही नहीं रहा। सो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि हम लोगों ने क्या क्या किया। नॉट ओनली कि गेम के अंदर मैप्स भी थे, बट हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे, जैसे कि एक लॉयर एआई भी था जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा था। नॉट ओनली दैट, आप जो भी मैप के अंदर रहोगे, उस मैप के अंदर आपको रिकमेंडेशन बटन भी था। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपको उसका यूट्यूब वीडियो मिलेगा उस आर्टिकल्स या फिर उस मैप के अकॉर्डिंग, जो भी रह सकता है। कि लेट्स से कि अगर मैप के अंदर ही गवर्नर्स का थोड़ा रूल मिल रहेगा, तो वाईटी वीडियोस के अंदर आपको गवर्नर के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिकमेंडेशंस के ऊपर। दिस वाज आवर नीश, यू नो, एक्स्ट्रा फीचर होता है थोड़ा बहुत, एआईएस भी होता है। नॉट ओनली दैट, एक अच्छा सा हिंट बटन भी था, सिंस अगर इतना बड़ा मैप है, अगर कोई प्लेयर कंफ्यूज हो जाता था तो यू कुड हैव क्लिक्ड ऑन द हिंट बटन, उसको हिंट भी मिलता था कि हाँ भाई इधर जाना उधर जाना एंड ऑल। एंड अपना सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट इटसेल्फ वाज द गेम, द कैटेगरी ऑफ गेम इटसेल्फ। बहुत सारे टीम्स थे पूरे एसआईएच में, 5 टीम्स होते हैं राइट एसआईएच की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जिन्होंने बनाया था वेब बेस या तो ऐप बेस। हमारा डिफरेंट क्या था कि ऑल दीज गेम्स बट वेरी सिंपल मिनी गेम्स थे। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये था कि हमारे पास मिनी गेम्स के साथ स्टोरी भी थी, और हमारा जो भी ऐप था, इट कुड हैव बीन ऐप, इट कुड हैव बीन वेब, इट कैन बी आईओएस, इट कैन बी इवन इन प्ले स्टेशन। ये इतना मतलब ऑन द लेवल था वो वाला। and yep, it was basically what was unique for us, and in the end this uniqueness is whatever यही हम लोग के ऊपर आ गया, because the point was they never understood ये आरपीजी कैरेक्टर क्या होता है, आरपीजी टाइप ऑफ गेम्स क्या होते हैं। मोस्टली whatever part was understood was कि हम लोग जो इंसाइट्स ले रहे थे हमारा यंगर ऑडियंस से ले रहे थे। इनफैक्ट वहां पे जो वॉलंटियर्स भी प्रेजेंट थे ना एसआईएच के अंदर, वी वर आस्किंग देम क्या ये आपको अच्छा लग रहा है, आर यू हैविंग फन प्लेइंग दिस, एंड दे वर लाइक यार मुझे लगा कि प्रोडक्शन कंपनी ने गेम बनाया। दैट वाज एक्चुअली फन। सो या दिस वाज आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट करेंटली, कि आरपीजी बेस गेम था, एंड हम लोग ने एआई भी इंटीग्रेट करके रखा था, जिधर चाहिए उधर एआई डाला था। यूट्यूब रिकमेंडेशन भी था ताकि बंदा पढ़ भी सके, और हिंट्स भी था स्पेसिफिकली ताकि बंदे को पता चले कि मैं मैप पे कर क्या रहा हूँ। ओके ओके, एंड कैसे करे, कैसे आगे जाए, वैसे वाला। हाँ कैसे आगे जाए, एंड नॉट ओनली दैट, ये भी था प्रोग्रेस बार भी था अलग अलग से, कि अगर बंदे को प्रोग्रेस करना मतलब उसको पता भी चलता था कि हाँ कितना प्रोग्रेस हो चुका है गेम के अंदर एंड ऑल, बहुत कुछ। एंड एक मिनी मैप भी था। मिनी मैप मतलब जैसे जीटीए में मिनी मैप देखा है ना, कि मतलब क्या क्या होता है मैप के अंदर वगैरह वगैरह, तो वो भी था, मिनी मैप भी था हमारे गेम के अंदर। ओके ओके, सो डिड यू वॉन दिस एसआईएच, मींस आप तो जीते ये? अनफॉर्चुनेटली, ओके, सो व्हाट अनफॉर्चुनेटली। वाज द रीजन? जस्ट आई वांट टू नो दैट। हाँ दैट्स द पॉइंट। सी अब बात यह है कि यू कैन लुक गगन, एक ही समझ लो देर आर 10 मैप्स राइट नाउ, 10 मैप्स है, 20 प्लस मिनी गेम्स है, एआई इंटीग्रेशन है, यूट्यूब रिकमेंडेशन है, हिंट बटन है, ट्यूटोरियल भी है, सब कुछ है, तो हार कैसे गए? हाँ भाई, समझा ही नहीं पाए देयर इज अ डाउट। आरपीजी गेम्स, समझा ही नहीं जूरीज को क्या होता है। एंड दिस वाज सम काइंड ऑफ की पहली बात तो लेट्स डिस्कस राउंड बाय राउंड, ठीक है, कि पहले मेंटरिंग राउंड होता है, एंड वी मेंटरिंग राउंड में उनको समझा देते कि भाई ये आरपीजी गेम होगा, मतलब आरपीजी गेम क्या होता है, स्टोरी होता है, ये होता है वो होता है। सो द जूरीज वर काइंड ऑफ लाइक यार तुम तो बस एंटरटेनमेंट करा रहे हो यूजर का, हमें तो बस नॉर्मल गेम चाहिए था, ऐसे वैसे आप क्या बना रहे हो, लाइक तुम खुद का गड्ढा खुद खोद रहे हो, लिटरल सेंटेंस ऑफ अ जूरी इटसेल्फ, खुद का गड्ढा खुद खोद रहे हो। हम लोग को लगा यार ठीक है, हम भी थोड़ा स्पोर्टिंगली ले गए, बंदा पहले राउंड में बोलेगा ठीक है, मेंटरिंग राउंड में कुछ मार्क्स कटता नहीं है, वाज लाइक ऑल राइट, लेट्स सी ठीक है। फिर हम लोग जूरी राउंड में आते हैं, जूरी राउंड 1, ठीक है।
वहां पे आता है, अलग सा जूरी होता है, एंड द जूरीज वाज सेइंग यार फैंटास्टिक प्रोडक्ट, वेरी नाइस प्रोडक्ट, ठीक है, वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, फैंटास्टिक, वेरी यूनिक, वी हैव सीन समथिंग वी हैव नेवर सीन, ये कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हम्म, जूरी राउंड टू, सेम थिंग की बोलते हैं ओके फैंटास्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हम्म, अगेन एंड अगेन। जूरी राउंड थ्री, अगेन ही सेज फैंटास्टिक प्रोडक्ट। नाउ द डिफरेंस इज गगन, कि इन्होंने हर बार हम लोग को फैंटास्टिक बोला, हर बार बोला कि our प्रोडक्ट इज यूनिक, बट द पॉइंट हम्म। इज दे नेवर चेक द गेम, इन्होंने गेम कभी चेक ही नहीं किया। Why is it so? दैट वाज it was reality, never check the game, never हम्म, even check the ppt, हम लोग ने हर एक राउंड के लिए अलग अलग पीपीटी बनाया था, they never even check the ppt, they never even check the game, and at the end we understood they didn't understood rpg type of games, and they weren't interested in the game at all, because ये rpg था, and हम्म, that is what was very like कि हाँ भाई हम लोग थोड़ा मार्केटिंग में मार खा गए, is that was the sole reason। अब आई विल एक्सप्लेन यू okay, व्हाई, ये जूरिस की हम्म, गलती, हम लोग जूरिस की गलती हो सकती है कि नॉट द पॉइंट, बट ये हमारी भी गलती हम एक तरीके से ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग ने हम्म, जो टारगेट ऑडियंस लिया था, यूथ को लिया था। अब जो बंदा हम्म, हमारे पास आ रहा है जूरी, उसका टारगेट ऑडियंस कुछ अलग ही था, उसका टारगेट ऑडियंस था पूरा इंडिया, ठीक है। अब पूरे इंडिया में ही वॉज टेलिंग कि यार ये फार्मर्स को कैसे समझेगा गेम्स कैसे खेलते हैं, एंड हम हम्म, लोग ने वो जस्टिफिकेशन दे नहीं पाई, क्योंकि हम लोग ने बोला सर हमारा ऑडियंस ही यूथ है, तो हम्म, सर हम इसका जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते राइट नाउ, क्योंकि हम लोग ने हम्म, कैटेगरी किया था एज वाइज, इन लोगों ने कैटेगराइज किया था लिटरेसी वाइज, कि हम्म, कोई भी बंदा जिसका लिटरेसी कम हो वो भी पढ़ पाए। हम लोग ने एक स्पेसिफिक एज फैक्टर के ऊपर फोकस किया था, यूथ के ऊपर, you, एंड विच okay, वॉज क्वाइट सेलेबल, कि इन लोग को बस यूथ के ऊपर नहीं चाहिए था, दे वांट टू कवर अ लार्जर ऑडियंस, एंड okay, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हम लोग का स्टेप बैक you हुआ। एंड failed. ऑल्सो दीज जूरीज ना, इनका भी एज फैक्टर होता है, यू अंडरस्टैंड कि आप अंकल्स को समझा नहीं सकते हो कि हाँ भाई आरपीजी ऐसा होता है करके, राइट। दैट वाज द फैक्टर कि हम इनको समझा नहीं पाए कि आरपीजी कैसे होता है, क्या होता है, एट द सेम टाइम देयर वाज अ गैप कि हाँ हम बस यूथ को टारगेट कर रहे हैं, दैट माइट बी वन रीजन। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि दे नेवर गिव अ फीडबैक, कि दे ऑलवेज सेड दिस वाज फैंटास्टिक बट नेवर गिव अ फीडबैक अबाउट इट। दे गिव अ फीडबैक अबाउट कि हम शायद से रिसर्च स्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते थे, बट नेवर टोल्ड ऑन पेस कि यार ये थोड़ा गेम आप चेंज करो, या फिर अप्रोच थोड़ा चेंज करो, समथिंग लाइक दैट। And that's why maybe that we have lost something which was very unexpected, but I guess we have to deal with it. So one thing is, tell me one thing कि आपको क्या लगता है? What are the necessary thing? Means marketing हो गया, presentation हो गया. What are the necessary thing? So हम means we can win the SIH. Okay, let's keep things in mind, ठीक है। keep, हम्म, पहली बात तो let's start with the हम्म, basics, keep the team, जो भी टीम रहेगा बंदे ढंग के रखो, सब बंदा काम करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। दे शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस समटाइम्स, एंड दे हम्म, शुडंट बी लेजी, ठीक है। मेरी टीम बहुत ही सही थी, मेरी टीम लाइक टेक्निकली सेम भी थी, एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम कि हाँ भाई अगर मुझे हम्म, टाइम अभी निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा कभी कभी मेरे शेड्यूल के बाहर, आई कैन डू इट हम्म, एंड इट्स फन बिकॉज आई एम डूइंग फॉर द टीम। टीम सही रहेगी, हम्म, वी आर गुड एंड यू कैन हैंडल एनीथिंग। नंबर वन, इफ यू आर गुड विद द टीम, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोसेस इटसेल्फ, कि जो पीपीटी रहेगा या फिर ये सब भी हो सकता है, शो इट टू योर मेंटर्स इटसेल्फ। हमारा एक को रीजन ये था कि हमारे पास मेंटर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सेम थिंग जूली हर्ट, कि हमारे पास मेंटर्स नहीं थे, तो टुक इट एज कि हाँ इनके पास मेंटर्स नहीं है, तो शायद से इनको समझा नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दैट वाज लिटरली हम्म, द फैक्ट दैट हैपेंड देयर। सो कीप मेंटर्स, कीप गुड मेंटर्स हम्म, अराउंड, दैट विल रेजोनेट अराउंड, कि अगर तुम्हारे प्लान में कुछ ऐसा होता है कि आड़ा टेढ़ा हम लोग चल रहे हैं, सो ही विल गेट यू ऑन बैक हम्म, टू द प्लान इटसेल्फ, ठीक है। मस्ट दैट हैपन, also need to know कि once your product is done, you should be able to justify the product itself. Justification matters. Point is, these juries might not be technically sane, but they are absolutely sane in industrialization. उनको इंडस्ट्री के बारे में पता है, उनको वो हम्म, उनका माइंडसेट यही है कि ये प्रोडक्ट तो बन चुका है, बट ये प्रोडक्ट हमारे इंडस्ट्री में कैसे जाएगा, पहली बात तो क्या ये इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है, यस और नो। हम्म, इफ यू कन्विंस देम कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये वो उस मार्केट के अंदर जा सकता है एंड विल परफॉर्म वेल, दैट इज वेयर यू विन। जस्टिफिकेशन मैटर्स, एंड ऑल्सो जस्टिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री इटसेल्फ। जैसे कि हमारे जूरीज थे, हम उनको वो जस्टिफिकेशन दे नहीं पाए कि हमारा जो गेम था ये उस हम्म, इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा, विच इज द एजुकेशन इंडस्ट्री। हम लोग इसको गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहे थे, जहाँ पे बहुत यूथ एग्जिस्ट करता है, बट दे वांट समथिंग ऑफ अ एजुकेशन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के लिए हमारा हम्म, प्रोडक्ट फिट नहीं था, आई बिलीव, आई अज्यूम, एंड इसलिए मे बी दैट इज व्हाट took us of towards one step down towards win, I guess that is what I believe. So always make sure
ग्रेट मार्केटिंग भी हो सकता है, बट जस्टिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट इटसेल्फ, हैविंग गुड मेंटर्स हु विल गिव इट, कीप यू इन चेक कि हाँ तुम सही चल रहे हो, एंड ऑल्सो अ गुड टीम इटसेल्फ, कि भरोसा रहे टीम का, दैट्स द मेन थिंग दैट शुड बी इन एसआईएच. सो वन थिंग इज देयर कि 36 आवर हैकेथॉन वो मीन्स बहुत बड़ी होती है. सो हाउ यू मैनेज, मीन्स आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं कि मीन्स ये टास्क पहले करेंगे और ये टास्क बाद में करते हैं, या पहले से आप प्लानिंग होती है पहले से ही, वो बताइए जरा. हाँ हाँ, दैट्स द पॉइंट. अब ये जो नॉर्मल 36 आवर्स के हैकाथॉन होते हैं, वहां पे तो दैट इज नॉट मच थिंकिंग गिवन आउट, ठीक है, बट बिकॉज वहां पे कुछ तो रूल्स होते हैं हम लोग के पास कि यू कैंट मेक अ प्री मेड प्रोडक्ट, राइट? ठीक है. बट द पॉइंट इज इन एसआईएच इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन. यहाँ पे द जूरीज एक्सपेक्ट यू टू कम विद अ नॉर्मल प्रोटोटाइप इटसेल्फ. एक थोड़ा सा वर्किंग प्रोटोटाइप तो चलना ही चाहिए उनका, along with the approach itself, because ऐसा बहुत बड़ा कंपटीशन होता है. एंड इट डजंट लाइक कि ये दिसंबर नवंबर में चालू होगा, या अक्टूबर या अगस्त से इनका प्रिपरेशन चालू होता है. सो बिटवीन दिस टाइम फ्रेम दे एक्सपेक्ट अस कि हम, हाँ भाई, रेडी होके रखे, कोई तो प्रोटोटाइप रेडी होके रखे. आवर स्पेसिफिकली अप्रोच हमारे टीम के साथ क्या हुआ कि सिंस हमारे नवंबर में ही एग्जाम्स थे, वी हैड टू ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बना के रखे थे प्रोडक्ट. बट वॉट एवर हैपन कि हम लोग का टाइम है स्पेसिफिकली कैसा डिसाइड था कि वॉट एवर हैपन्स देयर विल बी एन अप्रोच कि फ्रंट एंड पहले बन जाएगा. क्योंकि जो भी होता है ना, फ्रंट एंड के रिक्वेस्ट से ही बैक एंड बन सकता है. कि अगर मैंने लेट्स से कि फ्रंट एंड का बटन था हिंट का, तो बटन क्लिक करूंगा तब भी डेटाबेस से रिक्वेस्ट आएगा, तब भी जाके वो डिस्प्ले होगा ना कि हिंट क्या है करके, बराबर. सो वंस बरोबर. फ्रंट एंड इज नॉट डिजाइन, तब तक डेटाबेस क्या करेगा काम, बराबर. सो द फर्स्ट पार्ट वाज कि एक ऐसा पाइपलाइन बना के रखी, हाँ भाई, फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, वही वही चलते रहता है यूजुअली. ओके. फ्रंट एंड बैक एंड, दैट इज द यूजुअल अप्रोच इन अ 36 आवर फॉर्मेट. ठीक है, दैट हैपेंस. एसआईएच में भी वही होता है, बट इफ यू हैव अ टीम, फ्रंट एंड बैक एंड डज द वर्क इटसेल्फ. एंड ऑल्सो बीच में भी रिफाइनमेंट भी होता है कि हाँ भाई, फ्रंट एंड बैक एंड बन गया, ढंग का दिख रहा है, मे बी नॉट. दिखाएंगे दो तीन लोगों को, अच्छा ढंग का है, हाँ ढंग का है, लेट्स कंटिन्यू 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 अंटिल प्रोडक्ट इज डन. बेसिक अप्रोच इज फ्रंट एंड बनाओ, उसका बैक एंड बनाओ, फ्रंट एंड बनाओ, बैक एंड बनाओ, काम करो, आगे बढ़ते जाओ. दैट इज द पॉइंट. एंड दैट इज बेसिकली हाउ हम लोग का जो प्रोडक्ट था 36 आवर ऑफ हैकाथॉन में एसएच के पहले बहुत सही से बन चुका था, बिकॉज हमारा डेटाबेस भी रेडी था. इवन इफ फ्रंट एंड नहीं बना है, एटलीस्ट डेटाबेस वालों को पता था कि क्या क्या रिक्वेस्ट आ सकता है बैक एंड में, तो उन्होंने उसका एपीआई कीज भी बना के रखा था. सो दैट वाज एक्चुअली गुड थिंग, बिकॉज हमारे टीम वाले बहुत टेक्निकली सेम थे, तो वी वर लाइक गुड कि हमारे पास बैकअप्स भी थे बहुत सारे अलग अलग एपीआई कीज के. ओके ओके. तो इन दिस पॉडकास्ट हमने दो तो चीजें हमने सीखी कि हाउ टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क, एंड सेकंड व्हाट मिस्टेक शुड नॉट बी डन in while giving any of the hackathon, not even in the SIs preferably. And one last question to you, brother, that is, tell me one thing कि आपका एक memorable moment बताइए in the SIs जो आपको अच्छा लगा. Okay, What is memorable? okay. Okay, Gagan. I hope you relate to this. ठीक है. Yeah. Listen, like you are right now in fourth year. ठीक है. Yeah. You are considered a senior. ठीक है, फिलहाल तो. Consider आप engineering college में थे, you will be considered a senior. You go into a hackathon and randomly final round होने वाला है. Like final round हो चुका है juries का. और you know it कि कि तुम लोग हार गए हो, because at the last moment you came to know कि juries का जो expectation था हमने fulfill किया ही नहीं. juries कुछ और करना चाहते थे, हम कुछ और किया. And you were like kind of really desperate. But एक वॉलंटियर आता है, वॉलंटियर्स, दीज वॉलंटियर्स आर एक्चुअली फर्स्ट ईयर्स एफई के, वीटीयू कॉलेज के. ठीक है. एंड दे आस्क्ड मी, भैया आपका नंबर मिल सकता है क्या? ठीक है. एंड आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि आप मेरा नंबर क्यों मांग रहे हो, बिकॉज आई एम नो वन करेंटली, राइट? सो दैट वन सेंटेंस केम आउट. ही सेड, दिस गर्ल ऑफ वॉलंटियर्स फर्स्ट ईयर, भैया आप ना बहुत कूल हो. दैट वन सेंटेंस पूरा लाइक इधर स्ट्रेस्ड आउट, लाइक रिलीज हो गया, लाइक लेट्स चिल आउट ब्रो, लाइक है भाई. बिकॉज ये था कि कुछ भी कर लिया हम लोग ने, लेकिन ऑरा क्रिएट जरूर करके गए हम लोग पूरे हैकाथॉन में. बिकॉज एवरी टाइम द होल 36 आवर्स वी हैड अ लॉट ऑफ जूनियर्स एज वॉलंटियर्स अराउंड अस. एंड ऐसा भी नहीं था कि हम लोग बस वहां पे नहीं क्या बैठे हैं, बस गेम बना रहे हैं, अपना दिमाग तोड़ रहे हैं वहां पे. क्योंकि ऐसा भी हो रहा था कि नहीं क्या, एक्चुअली रैंडम वॉलंटियर्स पॉप आउट हो रहे थे एंड दे वर लुकिंग एट अ प्रोडक्ट, दे वर लुकिंग लाइक वाओ भैया कितना कूल है. एंड वी वर एक्चुअली टीचिंग देम कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, आपको करियर एडवाइस भी दे रहे थे. एंड एट द एंड ऑफ द टाइम, दो अगर मैं कुछ भी याद नहीं रखूँ ऐसा से, मैं एक चीज जरूर याद रखता हूँ.
that we created aura while SH was concluded, the best aura. Like हम लोग का टीम था, ऐसा भी था कि कभी विनर्स अनाउंस हुए थे ना, लाइक डिफरेंट टीम Hmm. अनाउंस हुआ था विनर, बट दे वो Hmm. बैकग्राउंड में शाउटिंग आ रहा था, टीम बाइट बेंडर्स, आई वाज लाइक शिट ब्रो, we Yes. actually created aura in the team, and that's the point that should you remember कि don't forget to be nice at least to the people around you. Like we treated them as our own, you know, हमें हमारे साथ लग रहा था कि वॉलंटियर्स है ही नहीं, हमारे ही कुछ तो Hmm. एफीस के लोग तो, and they were treating us the same कि हमारे ही सीनियर्स है, and they were just giving us everything, a lot of love, a lot of you know very wholesome people around, बहुत सही था हमारे लिए. So भैया आप बहुत cool हो, one Okay, thing I will that always was a remember. craziest moment for you. And, आपसे Yes, मिलके that एक was तो बात मैंने actually. सीखी कि if we are putting our 100% efforts with the right intent, then you will be okay. थोड़ा तो रहेगा बैक, भाई नहीं जीत पाए, but Yes, with the right intent you means actually you won you the can have it. hackathon. मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसा. एक्चुअली गगन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग, यू नो. हम लोग ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि डू नॉट पुट योर फीलिंग्स, जो भी इमोशंस रहेगा, रिजल्ट्स के ऊपर मत डालो. पुट योर फीलिंग्स इनटू द एफर्ट्स. अगर हम लोग ने बहुत दिल से बना के रखा, लाइक मैंने दिल से 11 मैच बनाए थे, बहुत एकदम नहीं क्या ब्यूटीफुल मैच बनाए थे 11. इट हैज ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, इट हैड ब्यूटीफुल साउंड. सो यू नो खुद से भाई वी वर प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, क्योंकि हम लोग बहुत हैप्पी थे कि मैंने जितना एफर्ट डाला ना, भाई मैं बहुत हम्म. मर मर के काम किया हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी अबाउट इट. अब बाकी जो भी रिजल्ट आ जाए दैट्स नॉट द पॉइंट, बट मैंने मर मर के काम किया ना, दैट शुड यू शुड बी प्राउड अबाउट इट मैन, एंड यू शुड आल्सो टेक इट विद यू गगन, लाइक द थिंग यू आर डूइंग पॉडकास्ट. अब पता नहीं रिजल्ट्स क्या आगे, बट यू आर हैप्पी दैट यू आर डूइंग पॉडकास्ट, यू शुड बी प्राउड अबाउट इट, दैट्स द पॉइंट. Thank you भैया, thank you for your दैट्स द, nice means. जस्ट बी प्राउड. बोला क्या क्या कुछ नहीं, means यही कुछ बोल रहा नहीं. था कि ऐसे ही मीन्स कन्वर्सेशन मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा भाई. मीन्स कल मैंने देखा कि एक बंदा पूरे स्किल्स सीख रहा इन द फोर्थ ईयर. वो अभी फोर्थ ईयर में है, और उसने एक एक एआई एंड एमएल छोड़ के सभी स्किल सीखा है. उसको सभी आता है. सब आता है उसको. डीएसए आता है. कोड फोर्सेस में सीपी कर रहा बंदा, आईसीपीसी किया उसने. गॉड, वेब किया, ऐप गॉड किया, डैम. ब्लॉकचेन किया, वेब थ्री किया. उसने सभी किया. एंड ही हैड क्रैक्ड 7+ हैकेथॉन्स. 7 नहीं, 15+ hackathons plus 6+ internships from the first year. He won the SIH in the first year. भाई वो क्रेजी बंदा था. उसके बाद मेरे को तू मिला भाई, तू एक क्रेजी बंदा है भाई. तो आइडिया भाई इज वेरी क्रेजी भाई. भाई तो भगवान का कौन सा भगवान लाया था पॉडकास्ट में, मुझे बुला के मिलना पड़ेगा बंदे से. हाँ मैंने आज डालूंगा. आई विल अपलोड दिस वीडियो. दैट वीडियो नाउ अपलोड हो गया होगा अभी, पता नहीं. श्योर, आई विल चेक इट आउट ब्रो. लाइक आई मीन कुछ तो क्रेजी बंदा रहेगा यार, बट या आई या गेस अभी मुझे भी थोड़ा यू नो आई एम ऑन दैट वे, देखना पड़ेगा. बट यू नो बी एफर्ट्स के लिए मत रोना मत, ठीक है. लाइक यू कैन बी सैड अबाउट द रिजल्ट, बट डोंट बी सैड की मतलब नहीं क्या, डोंट हैव द रिग्रेट एट द एंड कि मैंने ये पॉडकास्ट एक दिन नहीं किया, या फिर मैंने इस बंदे से पॉडकास्ट नहीं किया. बी हैप्पी दैट भाई मैंने आज कैमरा उठाया था, आज मैं बंदे से बात किया, एंड दैट्स यू हैप्पी अबाउट. डू द सेम थिंग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ऑल द व्यूअर्स यू आर वाचिंग. कोई भी काम करो, बट बी हैप्पी अबाउट द एफर्ट्स. पता है रिजल्ट्स इज एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट इटसेल्फ एट द एंड. हैप्पी फेम जो भी हो सकता है, दैट वुड बी बाय प्रोडक्ट. काम में अगर आपने अपना दिल लगा लिया है, दैट यू वुड बी वेरी सेल्फ सफिशिएंट अबाउट योरसेल्फ. लाइक दैट्स ऑल आई कैन से. Yeah, thank you, Bhaiya, for your nice conversation. And the थैंक last यू. I will say that the idea was so crazy. बस the one thing that is कि आप जीते नहीं, but दिल से भाई जीते भाई तू. Idea was so यस, वी crazy. वांट ऐसा हार्ट्स मैंने ब्रो. आइडिया ही नहीं देखा आज तक. टीम बाइट बेंडर्स एक्चुअली वांट हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड दैट वाज एक्चुअली ऐसा लगा भाई वर्ल्ड कप नहीं जीता हो, लेकिन फैंस का बहुत प्यार आ गया, यू नो फील लाइक दैट. Okay, okay. So thank you, Bhaiya, for coming here and sharing your wonderful journey. I'm very happy to have you in my podcast and you Oh, in my thank you so channel. much. अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू, नो इश्यूज ब्रो. लेट्स सी, लेट्स मीट यू अगेन समटाइम्स अगेन, कभी देखेंगे Yeah. जीत के आया तो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र.